नमस्कार मैम। Good morning everyone. I hope you all are fine. Good morning मैम। Good morning Good ma'am. morning. Good morning ma'am. Morning ma'am. Good morning ma'am. Good morning ma'am. Good morning. Good morning Okay everyone, now please. Good morning beta. I am fine, thank you. Everyone please turn off your mic. I am going to take your attendance. Yes, very good everyone. Okay ma'am. Okay. Good morning beta. Good morning everyone. Okay everyone, please be ready for your attendance. So as you all know कि when I say your name, you have to say yes ma'am or present ma'am. Okay. Okay. Devesh and Ruhi, beta please turn off your mic. Yes ma'am. Ruhi and Devesh, please अपने mic off करो. Okay. पुलत्य अघारा. Present ma'am. Okay. पुलत्य अघारा. Present ma'am. Okay. धरम घोरनिया. Present ma'am. Okay. रूही ब्लोच. Present ma'am. Okay. दक्ष देथरिया. Present ma'am. Okay. आयु देत्रोजा. Present ma'am. Okay. प्रिंस देत्रोजा. माधव फलाड़िया. Present ma'am. Okay. मनस्वी जेटलोजा. Present ma'am. Okay. द्विज कगथरा. Present ma'am. Okay. नव्या केला. क्रियांश कावर. Present ma'am. Okay. किरण खंडेका. निर्मित मिस्त्री. Nirmit Mistry present. Okay. नक्ष पाटड़िया. आरव पटेल. Present ma'am. Okay. दुर्वा पटेल. Present ma'am. Okay. नित्या राज. Present ma'am. Okay. श्लोक सांझा. Slok Sanjay is present ma'am. Okay. केविन सावरिया. Present ma'am. Okay. जिज्ञासा सेनापति. Jignasha Senapati is present ma'am. Okay. साक्षी शर्मा. श्रद्धा उंदविया. ध्रुवा वामजा. Present ma'am. ओके. हस्ती पटेल. त्रिशा पाटड़िया. देवेश मुंगिया. Present ma'am. यस. ओके. Okay everyone. So your attendance is done.
So now I am going to start today's class. So जो previous आपका class था, in that we completed understanding question number 3 and question number 4, and we completed vocabulary, that is synonyms. Synonyms are the words that have similar meaning, यानी जिनके meaning same होते हैं, same meaning. Okay. And in homework मैंने आपको question number 2 दिया था on page number 60. So today we are going to do 3 things. First, जो practicing grammar exercise है, that is what we are going to do. उसका question number 1 करेंगे, then speaking activity करेंगे, and then dialogue completion करेंगे, that is writing portion. Now, please अपने mic off रखो बेटा, please अपने mic off रखो. Okay. Now, we will start with the practicing grammar exercise that is given on page number 15 in your English textbook. So you have to open page number 15 in your English textbook और उसमें हम ये practicing grammar exercise करेंगे. So let us quickly revise. See, singular, that is one, and plural means more than one or many. So जो naming words, if we want to write naming words in their plural form, then we add s. यानी अगर हमें किसी भी naming word को उसके plural form में यानी more than one में लिखना है, तो हमें उसके पीछे s add करना है, ठीक है. But लास्ट क्लास में यानी कि जो लैंग्वेज लेडर जो हमने किया था उसमें आपने ये सीखा कि अगर वो नेमिंग वर्ड SH, CH, S, X या तो O उससे अगर एंड होता हो, यानी कि उसके लास्ट में अगर ये सारे वर्ड्स हो, तो उन्हें मोर देन वन फॉर्म में लिखने के लिए हमें ES ऐड करना है, ठीक है. So we will start with question number 1. Now kids here, please note one thing. आप प्लीज एक चीज ध्यान से और अच्छे से सुनिए. मैं जो भी आपको यहाँ पर करवाऊंगी वो आपको मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक में, अगर टेक्स्ट बुक में करवा रही हूँ तो टेक्स्ट बुक में, और अगर नोटबुक में करवा रही हूँ तो नोटबुक में आपको लिखना है. ये नोटबुक में नहीं लिखना है, जस्ट सेम जो चीज मैं आपको क्लास में करवाऊँ वो आपको लिखना है, ठीक है. पीडीएफ अगर शेयर करने वाली होंगी मैं, और अगर आपको पीडीएफ में से लिखना होगा तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगी कि ये आपको आपकी पीडीएफ में से लिखना है, अभी सिर्फ एक समझना है. मेरे मोस्ट ऑफ द क्लासेस में आपको सारी चीजें क्लास वर्क में ही कंप्लीट करनी है. तो ऐसा मत समझना कि अभी मैम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर वो पीडीएफ शेयर कर देंगे तो हम पीडीएफ में से लिख लेंगे. नहीं, मुझे जब ऐसा लगेगा कि इसमें पीडीएफ भेजने की जरूरत है उसकी पीडीएफ में सेंड कर दूंगी. अदरवाइज आपको मेरे साथ साथ ही अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना है. तो कोई ऐसे ही बैठा नहीं रहेगा, सबके पास अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए और मेरे साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट कर देना है. आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. सी, तो इसमें क्या करना है, राइट द प्लूरल ऑफ द वर्ड्स. यहाँ पर हमें जो वर्ड्स दिए हैं उनके प्लूरल फॉर्म यानी कि मोर देन वन फॉर्म जो है वो हमें लिखने हैं. बट इसमें जो ये A, B, C, D and E है वो आपका आज का होमवर्क है. दिस यू हैव टू कंप्लीट इन योर होमवर्क. कैसे, तो सी, कॉइन दैट इज वन इन नंबर, तो उसका प्लूरल यानी मोर देन वन के लिए आंसर वुड बी, चैट बॉक्स में लिखो क्या आएगा उसका आंसर. सिर्फ कॉइन का. यस, चैट बॉक्स में लिखना है बेटा. यस, वेरी गुड एवरीवन, कॉइन्स. यस यस, सो वी विल बी जस्ट एडिंग एस. तो उसी तरीके से ये जो पूरा यहाँ का A to E है, A B C D E, वो आपको कंप्लीट करना है इन होमवर्क, नॉट नाउ. अभी हम ये करेंगे दैट इज F to J, ठीक है.
जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, तो यहाँ पर आप देखो फॉक्स। तो इसे मोर देन वन ऐड करने के लिए हमें उसके पीछे एस लगाना है, बट मैम पेज नंबर इज गिवन। और हमने सीखा है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस हो तो हम उसे मोर देन वन करने के लिए ES ऐड करेंगे, so that will be foxes. Fox is one, foxes is more than one. Yes. साथ साथ इट इज ओके अगर आप अभी चैट बॉक्स में नहीं लिखोगे, बट आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखो ये वॉच वॉच, तो मेक इट मोर देन वन, बट लास्ट में हमें देखना है इसमें CH दिया हुआ है, सो दैट विल बी वॉचेस, वॉच, और साथ में ES ऐड करेंगे बिकॉज CH दिया है, सो दैट विल बी वॉचेस। देन ब्रश, सो अगेन SH है यहाँ पर, so it will be brush, and then ES that is brushes because SH है। then bus, इसमें लास्ट में S है, so to make it plural we have to add ES, buses, and cross, so the last word here is again S, so to make it more than one we will write cross and then ES, that is crosses. Okay, done. Crosses. So when you complete your work, please give thumbs up in the chat box. Done, ma'am. Once you complete your Ma'am, no work, done. please give thumbs up in the chat box. ओके, तो जब तक दूसरे कंप्लीट कर रहे हैं, so after you complete these we will discuss answers of your last homework, last class homework, that is ये जो आपका होमवर्क था वो भी हम डिस्कस करेंगे। Done, ma'am. ओके ओके बेटा, नो नीड टू टेल, जिसका हो गया है वो नहीं बोलेगा तो चलेगा। ओके, अब किसका बाकी है ये, किसका बाकी है ये, जिसका बाकी है वो अपना माइक ऑन करके बोलो। Whose work is remaining? Yes, बेटा बी फास्ट, whose work is remaining? मैम मेरा हो गया। ओके डन। ओके, मैं Done, इरेज ma'am. कर रही हूँ। ओके, नो नीड टू बेटा, सबको बोलने की मैम जरूरत मेरा नहीं। बाकी है। कौन, किसका? दुर्वा पटेल। हाँ ओके दुर्वा, कंप्लीट इट। ओके मैम, ओके, थोड़ा ही बाकी है। तो आपने कहा ना ओके। ओके, अच्छा जिला बाकी है, फटाफट से कंप्लीट कर लो, चलो। इन दैट A to E जो है दैट इज योर होमवर्क, वो अभी लिखना नहीं है। ओके, जिनका हो गया है प्लीज टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 16। ठीक है, पेज नंबर 16 पे जो वन एंड मैनी ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट एंड मैनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो आपका आंसर, जो आपका होमवर्क था। मैम A to E होमवर्क है। यस, A to E होमवर्क है। ओके मैम। ओके, डन दुर्वा।
दुर्वा हो गया? यस मैम। ओके ओके एवरीवन, ओपन पेज नंबर 16। मैम मेरा भी हो गया। वो उसका बाकी था ना, इसीलिए मैंने उससे पूछा था। ओके नीति, आपका भी हो गया है ना? ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। वन ऑब्जेक्ट मैनी ऑब्जेक्ट, ये आपका होमवर्क था, तो आपको सिर्फ आंसर्स अपने चेक करने हैं। ये मैं लिखने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगी, अगर किसी ने नहीं किया है तो। सी, मैं यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। जो वन है वो मुझे वन ऑब्जेक्ट में लिखना है, और जो मोर देन वन है यानी मैनी है वो यहाँ पर लिखेंगे। नाउ प्लीज कीप नोट कि अगर आपने जैसे कि मैनी का जो फर्स्ट आपने फर्स्ट लिखा हो, तो मैंने वो थर्ड लिखा हो या फोर्थ लिखा हो, तो सारी करेक्ट ही है। बस सिर्फ मैनी वाले मैनी में होने चाहिए और जो वन वाले हैं वो वन में। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि जो आपने वन में लिखे, जो मैंने लिखे वही आपने वन में लिखे, और जो मैनी में लिखे वो आपने लिखे। ठीक है, अगर वो आपका लास्ट है और मेरा अगर फर्स्ट है तो इरेज करके उसे वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी ऑर्डर में लिखा होगा सब सही है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन। सो इन द पिक्चर की जो चाबी का पिक्चर है दैट इज वन, तो वो आएगा वन में। फिर दिया है कार, तो वो कार भी वन है, तो हियर कार। फिर है पेन, 1 2 and 3 पेन्स है, तो वो आएगा मैनी में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेन्स। इट इज ओके कि आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर पेन्स आपने सेकेंड लिखा है, फिफ्थ लिखा है, कहीं पर भी लिखा है, बस वो मैनी वाली हेडिंग में होना चाहिए, अदरवाइज इट इज करेक्ट। फिर बॉक्सेस, बॉक्सेस, तो वो हम मैनी में लिखेंगे, मोर देन वन है बॉक्स, और क्योंकि एक्स है तो ई एस लिखेंगे, तो बॉक्सेस। देन पिक्चर है कैप का, तो दैट इज कैप, मोर देन वन, तो वो यहाँ पर आएगा। फिर है फ्लावर्स, 5 फ्लावर्स है, तो मोर देन वन, तो मैनी में लिखेंगे। देन है बनानास, यहाँ पर 1 2 and 3 बनानास, तो बनानास विल कम हियर इन मोर देन वन। ठीक है, फिर है पिक्चर ऑरेंज का, इट इज वन, तो वो हम लिखेंगे वन वाली हेडिंग में, तो हियर ऑरेंज। देन बटरफ्लाई 1, so again in 1, butterfly, and last one is lamp, 1 in number, 1 ही है, so here lamp। ठीक है, so just check it कि आपने 1 में की, कार, ऑरेंज, बटरफ्लाई एंड लैम्प लिखा है, and in many में पेन, बॉक्सेस, कैप, फ्लावर्स एंड बनानास लिखा है। ठीक है, अगर ऐसे में ही इसे उल्टा पुल्टा लिखा होगा देन इट इज करेक्ट, बट वो मैनी में इतने आने चाहिए और वन में इतने। ओके, तो ये आपका होमवर्क है जिसके आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ मैं अभी ये इरेज कर रही हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी आपका होमवर्क था, तो आपने ये लिख ही लिया होगा। नाउ सी, ये जो स्पीकिंग एक्टिविटी है वो भी हमें आज करनी है, बट हम पहले वो नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दिस डायलॉग कंप्लीशन, दैट इज राइटिंग पोर्शन। ओके, सो दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 17। So please open page number 17. We will do writing portion, that is dialogue completion. Okay, so before starting with this, what is a dialogue?
डायलॉग कंप्लीशन हमें इसमें से सीखना है। बट डायलॉग्स क्या होते हैं? व्हाट आर डायलॉग्स? तो डायलॉग्स यानी ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस जो 2 या मोर देन 2 पीपल यूज करते हैं व्हाइल टॉकिंग। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ सिखा रही हूँ तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि डायलॉग्स क्या होते हैं। फॉर दैट आई वांट मनस्वी टू टर्न ऑन योर माइक। मनस्वी। Yes, ma'am. ओके मनस्वी, can you hear me, Manashwi? What, ma'am? Okay. Manashwi, how are you? Fine, ma'am. How are you, ma'am? I am fine too. Thank you so much, Manashwi. Now, Manashwi, what is your favorite food? Gujarati. What is your favorite food? Gujarati. Okay, very good, Manashwi. So you like Gujarati food. Okay. And what do you do in your whole day? I mean, which is your favorite game? Game. Or what do you play? Chalo. Kitchen set. Kitchen set. Okay, so you like to cook food. That's why kitchen set. Okay. 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 Thank you so much, Manasvi. Thank you. Welcome, ma'am. Yes. Now I want Ayu Detroja. Ayu? Yes, ma'am. Okay, Ayu, how are you, beta? I'm fine, ma'am. Okay, very good. So, which is your favorite season? Summer season. Because Summer season. I like to eat ice cream. Okay, so you like to eat ice cream. That's why summer season is your favorite season. Okay, very good, Ayu. Very good. Okay, thank you so much, Ayu. You are welcome, Okay, kids. ma'am. Okay. see kids, तो आपने जैसे सुना अभी कि मैंने और मनस्वी ने बातें की, मैंने और आयु ने बातें की, तो हम दोनों ने जो बातें की और जो चीजें मैं बोली, जो चीजें मनस्वी बोली, आयु बोला, वो हुए हमारे डायलॉग्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा हाउ आर यू मनस्वी और हाउ आर यू आयु, तो उन्होंने कहा आई एम फाइन, थैंक यू। तो हाउ आर यू मेरा डायलॉग हुआ और जो उन्होंने कहा आई एम फाइन, ठीक है, थैंक यू, वो उनका डायलॉग हुआ। सो दैट इज व्हाट डायलॉग इज। अब ये जो राइटिंग पोर्शन है उसमें से आपको ये सीखना है, या इसमें से हम ये सीखने वाले हैं कि आपको डायलॉग्स तो दिए होंगे बट आधे, दैट इज इनकम्प्लीट डायलॉग, तो उन्हें हेल्पिंग हैंड की हेल्प से डायलॉग को कंप्लीट करना है। So that is what our writing portion is. तो इस writing portion से आप ये सीखोगे कि जो इनकम्प्लीट यानी जो हाफ अधूरे हुए जो डायलॉग्स दिए हैं उन्हें हमें कंप्लीट कैसे करना है। ओके, नाउ एवरीवन प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज पेज नंबर 17. See, so hey, here the girl is asking, hey, What is your favorite season? आप सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखोगे, ठीक है। So the girl answers, My favorite season is spring. तो फिर ये लड़की जो ये बोल रही है, so this is her dialogue, and ये इतना जो होगा this is her dialogue. Okay. फिर उसने कहा कि मेरी फेवरेट सीजन स्प्रिंग है, and then this girl again asked, why you said ऐसा क्यों, वो क्यों है फेवरेट सीजन? Then this girl answered, in spring season it is not so cold and not so hot. ठीक है, तो फिर ये आंसर देती है कि जो स्प्रिंग सीजन है उसमें ना ही उतनी ठंडी होती है
और ना ही उतनी गर्मी। ठीक है, सो कि ये जो दोनों के बीच में जो बातें हुई, जो कन्वर्सेशन हुआ, उसमें उन्होंने जो जो बोला, दैट इज देयर डायलॉग। तो फिर ये उनके डायलॉग होते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज, बट बिफोर स्टार्टिंग विथ द एक्सरसाइज, यहाँ किसी को भी ऐसा है कि डायलॉग कंप्लीशन में हमें क्या करना है और ये डायलॉग क्या होते हैं वो पता ना चला हो, ऐसा कोई है जिसे पता नहीं चला है? कैन प्लीज टेल मी, इज देयर एनीवन कि जिसे पता ना चला हो कि डायलॉग कंप्लीशन में क्या करना है, या तो फिर डायलॉग्स क्या होते हैं? सबको समझ में No doubt. No Okay. doubt. Okay, No doubt. okay, okay, everyone. Okay. Okay, so we will start with the textbook exercise. So everyone, please open. और आपकी तो बुक ओपन ही है, so please be ready with your pencils. ये भी आप मेरे साथ लिखोगे। ओके, सो सी, मैं यहाँ पर ये जो डायलॉग है वो पूरा यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकती, इट विल टेक टाइम। तो मैं 1 2 3 4 सी 1 1 2 3 4 ऐसे मैं नंबर्स दे रही हूँ, आपको नहीं देने हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। So how? From year last year, mountains also come. Okay, how beautiful these dash are. Okay, so ये first dialogue है. So in the picture you can see that ये जो girl है, she is saying something. वो कह रही है how beautiful these dash are. तो वो इस बॉय से कह रही है, वो कुछ ऐसी चीज की बात कर रही है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हम हेल्पिंग हैंड में देखेंगे, ठीक है, कि कौन सी चीज में आ सकती है। तो came here last year. No, it doesn't speak. Yes, so the correct answer is mountain. Yes, very good. Mountain. Yes, mountain. Yes. Mountain. Yes, yes, yes. Mountain. Yes, beta. Yes, 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 beta. Yes, mountains. Yes. So mountains को वहाँ से कट करके उसको वहाँ पर blank में लिखना है. It is mountains. माउंटेन्स यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर सेकेंड डायलॉग, यस आई, ये आई है, ओके, यानी जब हम खुद की बात कर रहे हो उस टाइम पे जो हम आई यूज करते हैं वो डैश। ओके, फिर सेकेंड में क्या है, फिर यहाँ पर ये जो बॉय है उससे कह रहा है, बेटा आप माइक ऑफ रखो अपने। ओके, हियर देन द बॉय सेज यस आई। अब देखो माउंटेन्स तो नहीं आएगा, ठीक है, और ये डिड यू कम भी नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज क्वेश्चन, दैट इज ए क्वेश्चन। ओके, yes, Manat. Yes, Yes, to come here. Yes, so that is correct answer. So yes, I, फिर यहाँ पर आएगा also love to come here and then full stop. Now third. ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यस आपको लग रहा होगा केम हियर लास्ट ईयर भी तो आ सकता है, बट वो क्यों नहीं आएगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी।
third is dash here earlier then question mark. So see, जो थर्ड है यानी कि ये वाला, ये जो गर्ल है वो इससे कह रही है, पूछ रही है, एक्चुअली नॉट कह रही है, बिकॉज ये क्वेश्चन मार्क इज गिवन, दैट इज कि ये क्वेश्चन है, ये डायलॉग क्वेश्चन है. तो डैश हियर अर्लियर, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है. Did you come here earlier? Here earlier, yes. So here we will write did you come. ये आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा था बच्चों कि did जो है that is talking about past. तो जो वर्ब यहाँ पर आएगा यानी कि डूइंग वर्ड जो होगा that will be in present. So did you come here earlier, वो उससे पूछती है कि क्या तुम पहले यहाँ पर आए हो. और that is last one. Call here last year. Came here last year. Yes, I came here last year with my parents. Yes, yes, very good everyone. I dash with my parents. With my parents. So, yes, I came here Ma'am, last year. क्या? मेरा हाँ बेटा, मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, डोंट वरी, मैं ऐसे उसे एज इट इज रहने दूंगी. ओके, so you can complete your work. So yes, I came here last year. Last year मतलब के पिछले साल. तो जब भी वो गर्ल ने उससे पूछा कि क्या तुम पहले यहाँ पर आए हो, see earlier that is पहले, क्या तुम पहले कभी यहाँ आए हो, तो उसने कहा yes, I came here last year. मैं पिछले साल यहाँ पर आया था with my parents. Now kids, see, मैंने आपसे कहा था कि yes I came here last year, वो भी यहाँ पर आ सकता था, है ना, बट हमने वो वहां पर क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि सी यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा है कि डिड यू कम हियर अर्लियर, तुम पहले यहाँ पर आए हो, तो उसके आंसर में यहाँ पर आया आई केम हियर लास्ट ईयर, दैट्स वाई. और आपने एक चीज देखो यहाँ पर नोट की है या नहीं, तो प्लीज नोट इट, क्योंकि यहाँ पर डिड था इसीलिए ये कम प्रेजेंट में आया, बट जब वो बॉय ने उसे आंसर दिया तब ये कम चेंज हो गया केम में, दैट इज प्रेजेंट जो है वो पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया. ओके, तो प्लीज गर्ल ने ऐसा कहा, yes I came here last year with my parents. यस. ओके, नाउ चलो अभी किसी का बाकी है, अगर किसी का बाकी है तो अपना माइक मुझे बताओ. No ma'am. No. आई से बेटा ठीक से सुनो मैं क्या कहती हूँ, जिसका हो गया है उन्हें नहीं बोलना है, जिनका बाकी है ये कंप्लीट करना बाकी है, वही अपना माइक ऑन करके बोलेंगे कि मैम माई वर्क इज रिमेनिंग और मेरा बाकी है, उन्हें ही बोलना है, सभी को नहीं बोलना है, और आज नहीं एवरी डे. माइक ऑफ रखो अपने. मैम मेरा बाकी है. मैम मेरा बाकी है. ओके, मैम मेरा हो गया. जो हो गया है वो नहीं बोलेगा बेटा, मैंने अभी अभी आपसे कहा, जिसका हो गया है उन्हें कुछ नहीं बोलना है, जिनका बाकी है उनकी ही बात हो रही है. ओके किड्स, सो आवर राइटिंग पोर्शन इज डन. अब हम एक स्पीकिंग एक्टिविटी करेंगे, जिसका बाकी है वो ये कंप्लीट करेगा, और जो जिनका हो गया, मोस्ट ऑफ द बच्चों का हो गया है, सिर्फ 2 का ही बाकी है,
बेटा जो दिन 2 का बाकी है हो जाए तो माइक ऑन करके बोल देना कि मैम हो गया दिन, ठीक है? मैम मेरा नहीं हो रहा, मेरा एक ही बच्चा है अब, मैंने 3 कर लिए। बेटा कौन बोल रहा है ये? नित्या। हाँ ओके नित्या, मैंने वही कहा बेटा, जिसका बाकी है वो कंप्लीट करो, जिसका बाकी है और उसका हो जाए फिर वो मुझे बता देना। मैम मेरा बाकी है। हाँ तो लिखो बेटा, वही तो मैंने कहा कि आप लिखो, हो जाए तब मुझे बता देना। ओके, so now we will do one speaking activity. जिनका हो गया है उनकी बात। और बेटा रूही प्लीज अब अपना माइक ऑन मत करो। रूही मैं ऑफ कर रही हूँ और आप कब से ऑन कर रहे हो? रूही माइक ऑफ ही रखो अपना बेटा। मैम कंप्लीट। ठीक है मैं कर देती हूँ रूही, अब आप मत उसे छूना। मैंने कर दिया। हो गया। ओके बेटा ओके ओके नित्या। मैंने हो गया। ओके दुर्वा। रूही बेटा मैं कब से ऑफ कर रही हूँ, वापस से ऑन कर देते हो उसे, अब मत छूना माइक को। Okay kids, now we will do speaking activity that is here, that is given in the speaking. रूही मैंने अभी माइक आपका ऑफ किया है, माइक को मत छूना अब, ठीक है? मैंने ही ऑफ किया है, अब आप टच मत करना उसे। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका माइक ऑन है बट ऑन नहीं है, मैंने ऑफ कर दिया है, तो अब आप मत ऑन करना। ओके तो स्पीकिंग में हम करेंगे ये। वापस किसने ऑन किया बेटा, नहीं समझ में आ रहा। ओके, when there is no sun, just imagine a day without a sun. ऐसा सोचो कि एक ऐसा दिन है कि जहाँ पर सन ही नहीं आया है, ठीक है, पूरे दिन। तो इमेजिन द सन इज ऑन अ हॉलीडे टुडे। क्या थोड़ा बाकी रह गया है। तो बेटा जब मैंने पूछा था तब नित्या आपने तो मुझे ऐसा कहा कि मेरा कंप्लीट हो गया है। ओके वेट अ मिनट, मैं अभी वेस्ट साइड में चली जा रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट वेट कर लो, मुझे जो दिखाना है ना वो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है? फिर आप कंप्लीट कर लेना। ओके, इमेजिन द सन इज ऑन अ हॉलीडे टुडे। सोचो कि आज सन हॉलीडे पे है। हाउ आर थिंग्स डिफरेंट टुडे? तो फिर अब कौन कौन सी चीजें उसमें डिफरेंट हो जाएगी? डिस्क्राइब इट इन ए फ्यू सेंटेंसेस। तो हमें ये बोलना, बस हम आज ये डिस्कस करेंगे। ओके नितिन, यू कैन कंप्लीट। तो हमें ये डिस्कस करना है कि अगर एक दिन के लिए सन हॉलीडे पे चला जाएगा तो फिर कैसे चीजें चेंज हो जाएगी फॉर अ डे, ठीक है? तो चलो, जिससे भी थॉट आ रहा है कि क्या हो सकता है, एंड प्लीज ट्राई टू स्पीक इट इन इंग्लिश, ठीक है? आप इंग्लिश में जस्ट ट्राई टू स्पीक इट इन इंग्लिश। अगर आपकी कोई गलती होगी देन मैं आपको करेक्ट करूंगी, ठीक है? ओके, सो प्लीज चैट बॉक्स में ही लिखेंगे एवरीवन, जिसे भी बोलना है दे विल राइट इट इन अ चैट बॉक्स आई, ठीक है? उसे मैं चांस दूंगी। ओके यस द्विज, कोई अपना माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। यस द्विज। There is no light outside. Yes, very good Dvij. That means कि there will be no light. Light ही नहीं होगी। Yes, very good Dvij. Thank you, ma'am. Yes, welcome. Yes, Dhruva. Yes, ma'am. Yes.
Okay, so there will be no warmth. Okay, so there will be no light and there will be no warmth to us. Okay, yes. Very good, Dhruva. Okay, next is Manasvi. Welcome. Yes, Manasvi. If the sun will if the sun not rise today, then we not get any light. Okay, yes, very good. So if there will be no sun, then we will not get light. Okay, okay, yes, very good, Manashwi. Yes, Kriyansh? Yes, ma'am. There will no sun. That in a day it is a night. Then there will be no day. So, sorry, there will be no day. Yes, and only it will be light. Yes, night. Sorry. Yes, very good, Kriyansh. Yes, Arav Patel? Yes, ma'am. Yes. जब संडे होगा, सनराइज होगा, तो लाइट और वार्म नहीं मिलेंगी हमको. Yes, so if there will be no sun, then we will. Yes. Sunday grow नहीं होगा. Yes, very good. Then plants will also not grow. Yes, very good, Arav. Welcome. Yes, Shlok. मैम, Yes, Devesh. मैं बोलूं? बेटा आपको उसके लिए मैंने कहा ना, ये स्पीच का रूल है. इफ यू वांट टू से समथिंग तो आपको चैट बॉक्स में आई लिखना है. इनकम्प्लीट. ओके ओके. यस यस मैम. यस मैम 1 minute. हस्ती अपना वीडियो ऑफ रखना बेटा. The sun Yes, did Flo. not light. So if there is no sun, then we will not get light. Is that what do you mean? Light did not light. May I, ma'am? Okay, कोई बात नहीं. Hello? Okay. Yes, Devesh. जब सन नहीं आएगा तो हमें हीट भी नहीं मिलेगी. Sorry, Devesh. What? विंटर के मौसम में जब अगर सन नहीं आएगा तो हमें हीट नहीं मिलेगी. Okay, yes. So Devesh said that if it is winter season, then if there is no sun, then we will not get heat of the sun. Yes, very good, Devesh. Yes, Ruhi. Yes, Ruhi. Okay, I think Ruhi का नेटवर्क का इश्यू है. Yes, आयु. Yes, ma'am. Yes, आयु. You cannot try to Wait, Ruhi, wait. Wait a minute. We cannot. Ruhi and Ayu. Beta, wait a minute. Ayu and Ruhi, wait, beta, wait.
दोनों ने एक साथ माइक ऑन करके बोलने लगे। रूही वेट अ मिनट, आयु पहले आप बोलना है एंड आफ्टर दैट रूही विल से। यस आयु। We cannot see and we see dark and we gives us not power, heat and light. Yes, so if there will be no sun, तो हमें ये कोई भी चीज नहीं मिलेगी। Yes, very good आयु। Yes रूही। Thank you ma'am. Welcome. Yes रूही। Light and no bright in the sky. Okay, so there will be no brightness in the sky. There will be no light. Okay, yes. Okay kids. So अपने सभी ने अपने अपने पॉइंट बता दिए मुझे कि if there will be no sun, then कौन कौन सी चीजें हो सकती है। ठीक है, अब मैं अपने बारे अब मैं बोलती हूँ। See, जैसे कि आप सभी ने कहा that if there will be no sun, then there will be no light, no heat of the sun, ठीक है, no warmth of the sun, and also there will be no day, मतलब पूरा रात ही चलेगा। One more thing is, we all know that plants need water. We all know that plants, in the presence of sunlight, with the help of water and air, they make their food. Plants अपना food बनाते हैं। So if there is no sun, then there will be no sunlight. So as there is no sunlight, the plants will not be able to make their food. That means plants मर जाएंगे, they will die. और plants मर जाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ? हमें भी फूड नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि हम प्लांट्स ही तो ईट करते हैं अपने फूड में। वेजिटेबल्स, फ्रूट जो भी खाए, दे ऑल आर गिवन बाय प्लांट्स। तो हमें भी फूड नहीं मिला। तो ये तो सिर्फ एक सन की बात है। देयर आर मेनी नेचुरल थिंग्स कि अगर वो ना हो तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। Just imagine if there is no cloud in the sky, or if there are no clouds in the sky. हस्ती, प्लीज वीडियो ऑफ कर दो बेटा अपना। बेटा मुझे नहीं सुनाई दे रहा आप क्या कह रहे हो। ओके, हो गया। ओके, सो क्लाउड्स नहीं है तो क्लाउड्स हमें क्या देते हैं? रेन। सो अगेन क्लाउड्स नहीं होंगे तो हमें रेन भी नहीं मिलेगा। सो इफ देयर इज नो रेन देन वी विल नॉट गेट वाटर, तो हमें वाटर भी नहीं मिलेगा। श्रद्धा, हस्ती, नित्या, बेटा प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑफ करो। ओके, देन वाटर नहीं होगा तो वी वोंट बी एबल टू लिव। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, टू बाथ, टू कुक फूड, इन एवरीथिंग। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। तो क्लाउड्स नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। तो सन नहीं होंगे तो हमें अभी ही डिस्कस किया कि क्या होगा, कि कौन कौन सी चीजें उससे अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो दैट इज वाई ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल थिंग्स है, सारी सन, देन वाटर, रेन, क्लाउड, ये सारे हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। अगर वो हॉलीडे पे चले जाए, अगर वो एक दिन की छुट्टी ले ले, देन वी वॉन्ट बी एबल टू लीव। ठीक है, ओके किड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वर्क, ऑल अबाउट इंग्लिश क्लास। मैंने आपको ऑलरेडी आपका होमवर्क जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो दैट होमवर्क यू हैव टू डू। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको होमवर्क जो है वो डिस्कस करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि आपका राइट है या रॉन्ग। ओके किड्स, सो बाय बाय एवरीवन। Bye ma'am. Bye. 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 Bye.